नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। अभी तक हम डील कर रहे थे y इज फंक्शन ऑफ x से, जहां y डिपेंड होता था x पर। नाउ वी कंसिडर x एंड y बोथ आर डिपेंडिंग ऑन सम अनदर वेरिएबल और पैरामीटर। कंसिडर सच two equations x equal to cos theta and y equal to sin theta, where theta lying between 0 से 2 pi. Now if we square this 2 and add, we get x square plus y square equal to cos square theta plus sin square theta, which is equal to 1. That is x square plus y square equal to 1. Now this is our regular equation, and here x and y are in terms of parameter theta. So the equations in 1 are called parametric equations of equation 2, which represent circle with center at origin and radius 1. These two equations are same. They represent unit circle with center at 1. इस आर्टिकल में हम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन यूजिंग पैरामेट्रिक इक्वेशंस इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इन जनरल, if y is equal to f of x is given relation and x and y are functions of some parameter t, then these equations are called parametric equations of y equal to f of x. Now we have to study a theorem which says if x equal to f of t and y equal to g of t are differentiable functions of t such that y is a function of x, y is depending on x, but x and y are directly depending on some parameter t, then dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. It is ratio of dy by dt and dx by dt. Obviously the denominator dx by dt should not be equal to 0. Now let us start proof. So for proof we assume delta t, delta x and delta y be small increments, ये एक लाइन जरा छूट गई थी, right, small increments in t, x and y respectively. Okay, this is starting of the proof. Now with this, if delta t tends to 0, ultimately x and y are depending on t, तो जो भी कुछ t में चेंजेस होंगे उसके कारण x और y चेंज होंगे. तो when delta x tends to 0, the delta t tends to 0, then delta x tends to 0 and delta y tends to 0. Now we can consider the ratio delta y upon delta x as delta y upon delta t upon delta x upon delta t. और जब हम टेंड्स टू 0 की बात करें तो मीन्स दे आर नॉट इक्वल टू 0, दे आर वेरी क्लोज टू 0. नाउ टेक लिमिट फॉर दिस एक्सप्रेशन एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0. वी गेट लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0, राइट हैंड साइड में लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी टेंड्स टू 0. फिर हमने पढ़ा है लिमिट ऑफ कोशेंट इज इक्वल टू कोशेंट ऑफ लिमिट्स, तो लिमिट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा. अब जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो रहा है और y और x डिफरेंशिएबल फंक्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिस न्यूमरेटर विल बी dy बाई dt, डिनोमिनेटर विल बी dx बाई dt, और लेफ्ट हैंड साइड में देखो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डिनोमिनेटर में डेल्टा x है. तो वी नो दैट व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन डेल्टा x टेंड्स टू 0. तो यहाँ पर लिमिट ले लिया डेल्टा x टेंड्स टू 0 के साथ में. अभी हमने बात की x and y are differentiable functions of t, therefore dy by dt and dx by dt exist, and they are limit of delta y by delta t tends to 0, and limit of delta x by delta t tends to 0. तो राइट हैंड साइड बन जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेंस टू 0, राइट हैंड साइड में आ गया डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. अब ये राइट हैंड साइड तो एग्जिस्ट हो रही है,
इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट होंगी, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट होंगी, और जब ये लिमिट एग्जिस्ट होंगी तो ये लिखी जाएंगी dy बाई डी एक्स। रिप्लेस कर दो इसकी जगह पर dy बाई डी एक्स, तो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, वेयर dx by dt is not equal to 0. So this is a important theorem. Now we will solve some examples of exercise 1.4 on page number 48. Question number 1 से कुछ example करते हैं. Find dy by dx if first problem ले रहे हैं x equal to at square and y equal to twice at. तो तुरंत हमें दिख रहा है x is डिपेंडिंग ऑन टी एंड वाई इज डिपेंडिंग ऑन टी। इसके अलावा जो कुछ होंगे वहाँ पर वो कांस्टेंट जैसे ट्रीट होते हैं। तो वी कैन फाइंड डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, सिंपल है ये। देन बाय रूल ऑफ पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन राइट डाउन द रूल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। वैल्यू पुट करेंगे, न्यूमरेटर इज डी वाई बाई डी टी दैट इज 2a, डिनोमिनेटर इज डी एक्स बाई डी टी दैट इज 2at। तो वी गेट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई टी। अब क्योंकि एक्स और वाई टी के टर्म में थे तो जो हमारा आंसर है डी वाई बाई डी एक्स वो भी टी के टर्म में मिल रहा है। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर टी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड y इक्वल टू लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब देखो कुछ टी के अलावा वेरिएबल है तो वहाँ बोलकर दिया गया होगा कि कौन सा पैरामीटर है। तो हियर m इज गिवन एज पैरामीटर, सो वी कैन डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू m विच गिव्स dx बाई डी एम। रूट के अंदर कुछ फंक्शन है m से रिलेटेड, तो पहले रूट का डेरिवेटिव लगाएंगे 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन बाय चेन रूल। तो वो आ गया 2m, 2 से 2 गया, m अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बचा। इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं y को विथ रिस्पेक्ट टू m। तो लॉग ऑफ समथिंग है तो 1 अपॉन पहले आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू m। वेरिएबल का ध्यान रखिएगा, इट इज m नाउ। तो डी वाई बाई डी एम हो गया 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। नाउ बाय पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन रूल, dy by dx is equal to dy by dm upon dx by dm. Put the values of dy by dm and dx by dm and simplify it. You will get answer as 2 upon under root a square plus m square. This is simple calculations. It can be done. Now let us take another example. X equal to t plus 1 by t power a and y equal to a power t plus 1 by t, where a is positive not equal to 0 and t is not equal to 0. These are the conditions. We have to find dy by dx. तो हमको दिख रहा है x और y डायरेक्टली t पर डिपेंड हो रहा है और कांस्टेंट जो है a उसके ऊपर कुछ कंडीशंस है। डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t, फाइंड dx by dt एंड dy by dt। चलो पहले फाइंड करते हैं dx by dt। तो ये मेन फंक्शन ऐसे कांस्टेंट है ना पावर में, तो पावर फंक्शन के समान दिख रहा है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a सामने t प्लस 1 बाई टी का पावर a माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन t प्लस 1 बाई टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t बाय चेन रूल। तो फर्स्ट टर्म तो ऐसी रहेगी, t का डेरिवेटिव 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t। अब ये बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है, तो ये रहा, ये बन गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पूरा पूरा एज इट इज़ a पावर t प्लस 1 बाई टी इंटू लॉग a। लेकिन ख़त्म नहीं हुआ ये, क्योंकि पावर में सिंगल वेरिएबल नहीं है, फंक्शन ऑफ वेरिएबल है, तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डी डी टी ऑफ t प्लस 1 बाई टी बाई चेन रूल। तो डेरिवेटिव ऑफ t इज़ 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ये लिख दिया यहाँ पर। अब हमारे पास dx बाई डी टी है, dy बाई डी टी है। रिकॉल द रिजल्ट by parametric differentiation, dy by dx is equal to dy by dt अपॉन dx by dt। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर दिए dy by dt की, नीचे dx by dt की। देखो एक जैसे एक्सप्रेशन है, ये डिवाइड हो गए और ये a को a के साथ कलेक्ट कर लो, तो यहाँ पावर 1 है, जब न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस 1 होके चलेगा और log a रहा और डिनोमिनेटर में t प्लस 1 बाई टी का पावर a माइनस 1 रहा। दिस इज द आंसर। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व किए जा सकते हैं। गिवन x इक्वल टू कॉस इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, वेयर t इज पैरामीटर वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो सबसे पहले dx बाई dt फाइंड करते हैं। अब
ये हमें दिख रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न में है 2t/1 + t²। ऐसे समय स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन काम करता है। तो पुट t = tan थीटा विच गिव्स थीटा = tan इनवर्स t। यहाँ रख दिया तो 2 tan θ/1 + tan² थीटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाता है sin 2 थीटा का। बाहर कॉस इनवर्स है, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, sin 2 थीटा इज cos π/2 - 2 थीटा। कॉस इनवर्स कॉस बैलेंस कर जाएंगे, π/2 - 2 थीटा बचा, थीटा इज tan इनवर्स t, इसकी जगह रिप्लेस कर दिया, तो वी गेट x = π/2 - 2 tan इनवर्स t। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt = π/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 -2 अपनी जगह, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 + t² विच इज -2/1 + t²। नाउ वी फाइंड dy/dt, तो y इज sec इनवर्स √1 + t²। अगेन स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन है, 1 + t² के लिए t = tan थीटा, थीटा = tan इनवर्स t बन गया। पुट करेंगे √1 + tan² थीटा विच इज sec² थीटा, अंडर रूट में sec थीटा बचा, बाहर sec इनवर्स है बैलेंस कर गया, थीटा बचा, और यहाँ से थीटा मिल गया tan इनवर्स t। सो y = tan इनवर्स t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट dy/dt = 1/1 + t²। Now by parametric differentiation, recall the formula, put the value, simplify it, answer will be -1/2। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन से कुछ एग्जांपल लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल। सेकेंड कैटेगरी, फाइंड dy/dx इफ x = cosec² थीटा एंड y = cot³ थीटा एट थीटा = π/6। अभी तक के हम केवल dy/dx फाइंड कर रहे थे, अब हमको पैरामीटर की वैल्यू भी दी हुई है। तो फर्स्ट फाइंड dx/d थीटा, पावर फंक्शन है cosec² थीटा, तो डेरिवेटिव इज 2 cosec थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ cosec थीटा विच इज -cosec थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये बन गया -2 टाइम्स cosec² थीटा इंटू कॉट थीटा। एंड y का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इट इज 3 cos² थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा माइनस cosec² थीटा। ठीक से लिख लेते, -3 टाइम्स cot² थीटा इंटू cosec² थीटा। नाउ बाय पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, dy/dx = dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, पुट द वैल्यूज ऑफ dy/d थीटा एंड dx/d थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सिंप्लीफिकेशन कर सकेंगे, एक कॉट यहाँ से डिवाइड हो गया, ये कोसेक पूरे डिवाइड हो गए, माइनस माइनस प्लस बन गया, 3/2 कॉट थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करनी है π/6, पुट करो कॉट π/6, तो कॉट π/6 यदि ये ट्रायंगुलर से हम ध्यान रखें तो 30 डिग्री का कॉट चाहिए, तो कॉस 30 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, कॉस होता है √3/2, साइन होता है 1/2, 2 डिवाइड हो गया, 3√3/2 इज द आंसर। तो इस तरह के और भी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में, जो dy/dx है उसमें पैरामीटर की वैल्यू पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन से कुछ सैम्पल प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लेट अस टेक 7th प्रॉब्लम। इफ x = sin इनवर्स e⁻t एंड y = √1 - e⁻2t, then show that sin x plus dy/dx = 0। सो फर्स्ट वी फाइंड dx/dt, dy/dt और उनकी हेल्प से dy/dx, और फिर देखते आगे क्या होता है। x = sin इनवर्स e⁻t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट dx/dt = साइन इनवर्स समथिंग है, तो उसका डेरिवेटिव चेन रूल से 1/√1 - समथिंग का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज e⁻t का डेरिवेटिव t से, ये हो गया dx/dt। नाउ y = √1 - e⁻2t, अंडर रूट है मेन फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करते विथ रिस्पेक्ट टू t, तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस e⁻2 का डेरिवेटिव e⁻2t इंटू 2 से 2 डिवाइड हो गया, माइनस e⁻2t अपॉन √1 - e⁻2t इज dy/dt। नाउ बाय पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, dy/dx = dy/dt अपॉन dx/dt, पुट द वैल्यूज। अच्छा, ये वैल्यू पुट करते समय ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर में dy/dt है और डिनोमिनेटर में dx/dt है। कई बार वैल्यू पुट करने में गड़बड़ हो जाती है, तो केयरफुली वैल्यू पुट कीजिएगा। चलिए, डिनोमिनेटर तो डिवाइड हो गए, e⁻2t है, नीचे e⁻t है, ऊपर गया तो ये बन गया e⁻t माइनस साइन के साथ, e⁻t था, देखिए
यहाँ से e पावर t विल बी साइन x, ये साइन इनवर्स इधर जाके साइन x हो जाएगा, रख दो साइन x, और ये माइनस को लेफ्ट साइड में ले जाके साइन x प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यही हमें चाहिए था। नो क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक के हम x और y दिए हुए होते थे इन टर्म्स ऑफ सम न्यू वेरिएबल। अब दो फंक्शन ऑफ x है और एक को दूसरे से डिफरेंशिएट करना, इस तरह की कैटेगरी, इस कैटेगरी की प्रॉब्लम ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में ट्रीट करते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डिफरेंशिएट 3 पावर x विथ रिस्पेक्ट टू log 3 टू द बेस x। अब दोनों जगह x इन्वॉल्व है तो हम इनको कुछ अपने मन से वेरिएबल दे देते, तो लेट u इक्वल टू 3 पावर x एंड v इक्वल टू log 3 टू द बेस x। इसका मतलब हमको करना क्या है, u को डिफरेंशिएट करना है v से, मीन्स वी हैव टू फाइंड du बाई डी। तो पहले u का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डेरिवेटिव 3 पावर x अपॉन इंटू log 3। नाउ v इक्वल टू log 3 टू द बेस x, पहले इसको ठीक कर लेते हैं यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज, log 3 अपॉन log x। अब dv बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो log 3 तो कांस्टेंट 1 अपॉन x जैसा बच रहा है ये, तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हम इसको बोलेंगे माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर और इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स बाय चेन रूल। इसको ठीक करके लिख लो, माइनस log 3 अपॉन एक्स log x का स्क्वायर। दोनों डेरिवेटिव हमारे सामने दिख रहे हैं, du बाई डी एक्स है, dv बाई डी एक्स है। नाउ बाय पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन du बाई डी वी इज इक्वल टू du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स, वैल्यू पुट करो। अब देखो du बाई डी एक्स पहले है और dv बाई डी एक्स पहले है, यहाँ पर हमने du बाई डी एक्स पहले फाइंड किया, फिर dv बाई डी एक्स फाइंड किया है। वैल्यू पुट करो, बस वैल्यू प्रॉपरली पुट करते आनी चाहिए। पुट कर दो, log 3 से log 3 डिवाइड हो गया और ठीक ठाक कर लेते हैं, डिनोमिनेटर की टर्म्स ऊपर चले गई, माइनस एक्स 3 पावर x log x का स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन है। कई बार इसको ऐसा भी लिखा जाता है, u फंक्शन को u की जगह लिख दो, v फंक्शन को v की जगह लिख दो, तो इसको कहा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 3 पावर x विथ रिस्पेक्ट टू log 3 टू द बेस x इज इक्वल टू माइनस एक्स 3 पावर x log x का होल स्क्वायर। इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज में। यदि ये कंसेप्ट समझ में आ गए हैं तो पहले आप सॉल्व एग्जाम्पल पढ़िएगा एज यूजुअल और फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। इसी के साथ पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बाय बाय, टेक केयर, जय गणित।